Wrong answer. गलत जवाब। Father, पिता, because I believed in क्योंकि your Son, Lord Jesus Christ. मैंने आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, And the gates will open wide open. और वो गेट ऐसे खुल जाएंगे आपके लिए। Amen. Because this righteousness of God is a free gift to everyone who believes. क्योंकि परमेश्वर की ये धार्मिकता फ्री गिफ्ट है हर किसी के लिए जो विश्वास करता है यीशु पर। अब मैं सुन रहा हूं, मैं आत्मा में कुछ अच्छा मतलब अब हम पवित्र जीवन ना जिए। I am hearing some thoughts in the spirit. Oh, so we don't have to live a holy life. आ रहा हूं आप पे। I'm coming to you. जब राइचियसनेस की परमेश्वर को समझोगे तो असली में पवित्र जीवन जियोगे। When you will understand the righteousness of God, you will live truly a holy life. परमेश्वर की नजर में पवित्र जीवन केवल सिगरेट ना पीना और शराब ना पीना नहीं, ये तो एलिमेंट्री होलीनेस है। क्या ये एलिमेंट्री होलीनेस, किंडरगार्टन होलीनेस। In God's eyes, holiness is not just not drinking and not smoking. This is just elementary. शुरुआती है ये तो। Do you want to know what is genuine holiness in God's eyes? जानना चाहते हो सच्ची पवित्रता क्या है परमेश्वर की नजरों में? To show mercy, दया दिखाना, to be compassionate. कृपा करना। अगर आप धार्मिक आत्मा के अधीन हो, If you are under the influence of the religious you will spirit, constantly be judging people. आप लगातार लोगों का न्याय करोगे। अरे ये स्टेज में आई है, देखो उसने कैसे कपड़े पहने थे, she's अरे देखो on the उसने stage, सर नहीं look at ढका, her clothes. अरे देखो इस चर्च में तो काला काला है सब कुछ। She is not covering her head. There is black everywhere. मैं एक वीडियो देख रहा था राजस्थान की, जहां पे एक औरत जिसने इतना घूंघट रखा था अपने आगे, I was seeing a video of Rajasthan where there was a woman who had this huge covering over her head. और वो गई और उसकी ननद का जो बच्चा था उसको जहर की एक ड्रॉप दे दी, And she क्योंकि went- उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। एंड शी किल्ड दैट वुमन। उसका घूंघट यहाँ तक था। And she went and gave poison to her sister-in-law's child because she herself had no kids and she was wearing a head हम covering. till लोगों here. को लग रहा है परमेश्वर ज्यादा ध्यान रख रहा है, किसने सर ढका ही नहीं। अरे वो आपके दिल में देख रहा है कौन से विचार उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं। उसकी पवित्रता अलग पवित्रता है। He wants you to become holy in your heart, in your thoughts. We think God is looking if our head is covered or not. He is looking at your heart. वो ये देख रहा है आपके दिल के विचार पवित्र है कि नहीं है। That is genuine and true holiness. वो सच्ची असली पवित्रता है जब कोई परमेश्वर में। आपके लिए बुरा बोलता है, कड़वा बोलता है, आपको पता है, आप अपने कमरे में जाके उसको श्राप देते हो या अपने घुटनों में आके उसको ब्लेस करते हो। That is true holiness. When someone speaks evil of you, they speak bad about you. Do you curse them or do you bless them when you go to your room? यीशु मसीह ने धर्म के शिक्षकों को बोला, जाओ पहले ये सीख के आओ कि मैं चढ़ावा नहीं मगर मैं दया चाहता हूं। Jesus told the religious leaders, he said, go and first learn that I do not desire sacrifice but mercy. दया दिखाना। To show mercy. Amen? बहुत अच्छी बात है, आप सिगरेट नहीं पीते, आप शराब नहीं It's a पीते, very good thing. You don't drink, don't smoke. पीना भी मत, Don't do that. अच्छी चीज नहीं है। They're not good things for you. But that's elementary holiness. और वो शुरुआत ही है बात पवित्रता में। Does your heart beat like the Father? Do you think like Him? क्या आपका दिल पिता की तरह धड़कता है, उसकी तरह Are you सोचता है? quick to forgive? आप जल्दी से माफ करते हो? आपको नहीं पता पास्टर, 20 साल पहले उस औरत ने मेरे साथ। अरे 20 साल हो गए भैया, 20 साल हो गए, कब तक गाओगे वो गाना? Oh, you don't know, pastor, that woman, what she did 20 years ago. It's been 20 years. Stop singing that song. 20 साल में 4 बार सरकार भी बदल गई है। In 20 years, the government has changed 4 times. He is desiring holiness of our heart. वो हमारे दिलों की पवित्रता चाहता है। Amen? Do you know that when Jesus looked at religious people and He called them, you brood of vipers, they were the people who were wearing long robes. जब यीशु ने धार्मिक लोगों को देखकर सांप के बच्चों कहा,
तो वो लोग थे जो लंबे चोगे पहन के आए हुए थे। They were the people who were praying the most. वो लोग थे सबसे ज्यादा प्रार्थना करते थे। They were the people who were giving tithe of mint and cumin seeds. वो लोग थे जो जीरे, धनिये, पुदीने का भी दशमांश देते थे। धनिये की तायत दी है आपने आज तक? Have you ever given tithe of these things? जरूरत भी नहीं है. There's no need to. See, understand this. We don't give now to be accepted by God. हम परमेश्वर से ग्रहण हो जाएं इसलिए नहीं देते, Because He loves us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है And we have become generous like Him. Generosity flows out of us. और अब हम उसकी तरह उदार बन गए हैं, इसीलिए उदारता हमारे स्वभाव से बहती है। Holy life is not the root, it is the fruit of holiness, it is the fruit of righteousness. पवित्र जीवन जड़ नहीं है, पवित्र जीवन तो एक फल है जो धार्मिकता से पैदा होता है। Amen? Hallelujah. I'm telling you, do you know why so many Christians are suffering? पता है बहुत से मसीह लोग क्यों सताव में, Not परेशानी सताव में में, सताव तो आएगा. परेशान है? प्रार्थना करी इतने साल से, They prayed for many years, and it feels like God is not answering their prayer. और ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा प्रार्थना का। क्यों? Is God unjust? क्या परमेश्वर न्याय नहीं करना जानता? अन्यायी है क्या वो? See, let's go to Matthew 6:33. I'll show you something. मत्ती 6:33 यहाँ पे लिखा है, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, It says पहले उसके परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, and all these things shall be added unto you. और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। You don't. Bible never tells you to seek your own righteousness. Bible- Bible tells you to seek His righteousness. बाइबल आपको नहीं कहती कि अपनी धार्मिकता बनाओ, पर बाइबल कहती है उसकी धार्मिकता का पीछा करो। और कई लोग इसको उल्टा पढ़ते हैं. वो कहते हैं अच्छा इसका मतलब मैं ज्यादा करूंगा तो परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा. नहीं. Some people read it reversed. They think if I do more, then God will accept me. No. When you seek His righteousness, जब आप उसकी धार्मिकता का पीछा करते हो, when आप जानते हो हर रोज आपका ध्यान किस में होना चाहिए? you know every day what your focus जब should भी be. आप सुबह उठते हो, When you wake up in the morning, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरे लहू ने मुझे धर्मी बना दिया है. Lord Jesus, I thank you that your blood has made me righteous. You are every day aware. You live in this awareness that you have been washed by the blood of Jesus. आप हर दिन इस हकीकत के लिए सचेत हो कि आप धोए जा चुके हो यीशु के लहू से। Amen. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। Let's go to Genesis 4:7. उत्पत्ति 4 उसका 7। अब जो लोग बोलते हैं कि आप उस जगह में आ रहा हूं, when people accuse you that अच्छा इसका मतलब कि हम पवित्र जीवन ना जिए, जिसमें लोग दोष लगाते हैं कि should we not live a holy life? हम बिल्कुल पवित्र जीवन जिए We should क्योंकि absolutely live हमारा a holy life परमेश्वर पवित्र है. because our God is holy. मगर पवित्र कर्म हमें पवित्र नहीं बनाते, क्योंकि हम पवित्र कर दिए गए हैं इसलिए हम पवित्र कर्म करते हैं. But holy works don't make us holy. Because we are holy, we do holy things now. Amen. देखिए बाइबल में क्या लिखा है. Now God is talking to Cain here. परमेश्वर यहाँ पे केन से बात कर रहे हैं। If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is for you. यदि तू भला करे क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर तू भला ना करे तो पाप द्वार के पीछे छिपाया और उसकी चाहत, उसकी लालसा तेरे लिए। आप कौन कौन जीवित है इस जगह में? अपना हाथ दिखाइए. लाइफ शो मी हैंड। आप बहुत जरूरी, आप इस वचन को ध्यान से सुनिए. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हियर दिस वर्ड। अगर पाप केवल कर्म होता, इफ sin was just a work, तो पाप कैसे चाहत कर रहा है केन के लिए? then how could sin desire for Cain? How can, if sin is a verb, how can sin desire Cain? अगर पाप एक कर्म है या क्रिया है तो कैसे उसकी चाहत रख सकता है केन की? How can sin desire someone? कैसे वो चाहत रख सकता है किसी की? Because sin is a personality, a nature. क्योंकि पाप एक व्यक्तित्व, एक स्वभाव है। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं? Sin is not just action. पाप सिर्फ कर्म या क्रिया नहीं है। Sin is a personality. पाप एक व्यक्तित्व है।
और वो व्यक्तित्व केन को डिजायर कर रहा था। And that personality was desiring for Cain. और जैसे पाप कर्म नहीं है, एक व्यक्तित्व है, वैसे ही राइचसनेस या धार्मिकता भी कर्म नहीं है, मगर एक व्यक्तित्व है, नेचर है। And just as sin is not an act but a nature, similarly righteousness is not an act, it is a nature. Okay, I want to show you something. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. Okay, guys, can you come? Okay, come. Hallelujah. Wow. Amen. This is pre-Christmas service. ये pre-Christmas service है आपके लिए. All right. So, आप जानते हैं आप पाप करके पापी नहीं हुए. Did you know that you did not become a sinner by आप sinning? पैदा ही पापी हुए थे. That you were born a sinner? कितने लोगों को पता है बात? How many of you know this? हाँ? You didn't become sinner the day you sinned. आप उस दिन पापी नहीं बने जब Hear आपने this. पाप किया. Because you were born sinner, that's why you are sinning. क्योंकि आप पापी पैदा हुए थे, इसीलिए पाप कर रहे थे. फिर से बोलता हूँ. दोबारा कहता हूँ. हाँ? Verily, verily, I say unto you. मैं तुमसे सच कहता हूँ. If you have ears to hear, अगर सुनने के कान हो, तो सुनो. and hear. Amen. हम सब पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पैदा पापी हुए थे, तो वो नेचर पाप का हमारे अंदर था. We all began to sin or we were sinning because we were born a sinner. We had the nature of sinners. पाप का जो स्वभाव हमारे अंदर था, वो हमारे द्वारा गलत चीजें कराता था. गलत तरीके से आप देखते थे, गलत तरीके से बोलते थे, सुनते थे, क्योंकि एक व्यवहार आपके अंदर था, एक नेचर आपके अंदर था. And that nature of sin used to make us do sinful things. Think, see sinfully, speak sinfully. ध्यान से सुनिए. परमेश्वर ने केन को बोला जब ये, When God said this to Cain, और केन ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, and Cain did not listen to God, क्या हुआ? what happened? उस पाप ने जो केन के अंदर था, अपने भाई को मर्डर कर दिया. The sin that was in Cain killed Cain's brother. आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? You understand? सो जिस दिन आदम के अंदर ये पाप गया, So the day Adam received this nature of आपने sin, देखा, अगर आपको नहीं पता, अगर रैबीज हो जाए किसी को, you know, if someone कुत्ता gets काट affected ले by और एक rabies, बीमारी है रैबीज, वो हो जाए, if someone gets affected by rabies, if a dog bites them, तो क्या होता है? उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, बंदा start to have- पागलों की तरह एक्टिंग करने लग जाता है. they start to have neurological problems, and क्योंकि एक वायरस रैबीज का अंदर चला गया, because a virus of rabies came inside of उस them. वायरस की वजह से वो व्यक्ति बाहर से ऐसी हरकतें करने लग जाता है. Because of that virus, the person has started to do such things अब एक जो outside. व्यक्ति जिसको वायरस हो गया ऐसा रैबीज का, और आप उसे बोलते हैं, ओए अच्छे से बैठ, Now, a person who's affected by such a virus, you tell him, hey, sit properly, अच्छे से बिहेव करो. behave properly. अरे वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? Why is he behaving like this? क्योंकि क्या है? अंदर रैबीज का वायरस है. There is a virus. of अगर rabies ठीक inside. करना है उसे, तो अंदर से ठीक करना पड़ेगा. If he has to be fixed, he has to be fixed from inside. बाहर ये कहने से ऐसा मत कर से वो नहीं कर सकता. उसके अंदर कुछ है जो उससे वो करा रहा है. Just by saying don't do this will not fix it, because there's something inside that's making him do it. एक व्यक्ति जो लगातार शराब पी रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, जो सारी गलत, अंदर कुछ है जो उससे ये चीज करा रहा है. A man who is drinking, smoking, doing all the wrong things again and again is because of something that is inside that's making him do it. केवल ये बोलकर एक शराबी को शराब मत पी काफी नहीं है. Just to tell an alcoholic do not drink is not enough. उसके अंदर एक नेचर है जो उससे ये करा रहा है. There is a nature inside him that's forcing him to do it. Amen. चलिए एक वर्स पढ़ते हैं. 2 Corinthians 5:21. For he, that means God, made Jesus, who knew no sin, to be sin for us. जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने पाप ठहराया. हमारे ध्यान लिए सुनिए. पाप ठहराया. ध्यान सुनिए. यीशु मसीह क्रूस पर पापी नहीं था, पाप था. Jesus was not a sinner on the cross. He The was Bible doesn't sin. say God made Jesus a sinner.
बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने यीशु को पापी बनाया। Jesus was not made a sinner, he was made sin. यीशु पापी नहीं बनाया गया, वो पाप बनाया गया। वो जो पाप का जो व्यक्तित्व था, यीशु मसीह उसके साथ एक होकर क्रूस में चला गया। Jesus became one with the very person of sin on the cross. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यीशु मसीह ने कभी पाप किया? Did Jesus ever sin? क्या ध्यान से सुनिए, क्या यीशु मसीह ने कभी पाप किया? Did Jesus ever sin? जो बोले नहीं, जोर से बोलो। करा? कभी पाप नहीं करा। He never sinned. तो फिर वो पाप कैसे बन गया बिना पाप करे? Then how did he become sin without sinning? हाँ, कैसे बन गया? अरे लिखा है वहां पे, पढ़ो। पिता ने जो पाप था वो यीशु के साथ एक कर दिया। God made him to become sin. Sin was imputed to him. पिता ने उस पर उस पाप को लाद दिया, उस पर डाल दिया वो पाप जो था। Okay, guys, come. So what happened on the cross? क्रूस में क्या हुआ? पिता ने क्या किया? यीशु मसीह जो पवित्र है अनादि काल से, परमेश्वर ने क्या किया? उसकी धार्मिकता को लिया। What the Father did on the cross, he took the और righteousness. मनुष्य का जो पाप का स्वभाव था उसको यीशु के ऊपर डाल दिया। He took the righteousness of Jesus that was from और the यीशु beginning. मसीह उस पाप के स्वभाव के साथ क्रॉस पे चला गया और उस पाप के स्वभाव को उसने क्रूस पे नाश कर दिया। That's why the Bible says your body of sin was destroyed on the cross of Calvary. The Father took the righteousness off of Jesus and put the sin nature of man on him. इसीलिए बाइबल कहती है वो नाश कर दिया गया, जो पाप की देह थी क्रूस पर नाश हो गई। यानी वो स्वभाव जो आपसे पाप कराता था वो क्रूस पर उसको नाश कर दिया परमेश्वर ने। The nature that made you sin, God destroyed it on the cross. Amen. और फिर परमेश्वर ने क्या किया? And then what did God do? और जो यीशु मसीह की धार्मिकता थी The वो righteousness सेत of में उसने Jesus- मनुष्य जाति के ऊपर दे दी। The righteousness of Jesus, he put it on mankind. And the Bible says God has declared us righteous. और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें धर्मी घोषित कर दिया है। You have been declared righteous. आप धर्मी घोषित हो गए हो। Say I am declared righteous. बोलो मैं धर्मी घोषित हो चुका हूँ। Say I am declared righteous. मैं धर्मी घोषित हो चुका हूँ। Amen. अब ध्यान से सुनो। जैसे यीशु मसीह बिना पाप करे पाप बन गया, वैसे ही आप भी बिना धार्मिकता के काम करे धार्मिकता बन गए। Just as Jesus became sin without sinning, similarly you became righteous without doing the works of righteousness. Amen. That we might become the righteousness of God in Christ Jesus. कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए मसीह यीशु में। Say I am the righteousness of God in Christ Jesus. बोलो मसीह यीशु में मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं। अब क्या हुआ है? ध्यान सुनो। अगर आप मसीह हो, understand what a Christian means. Now what एक मसीह का अर्थ क्या है समझे? Now, if you are a born again believer, अगर आप नया जन्म पाए विश्वासी हो, you have a new nature. एक नया स्वभाव आपको मिल चुका है। That is what righteousness means. ये है धार्मिकता का अर्थ। अब ये जो स्वभाव है, Now this nature ये आपसे प्रार्थना भी कराएगा, will make you उपवास pray, भी कराएगा, will make you fast, ये आपसे जनरॉसिटी से देगा भी, will make आप you पवित्र give जीवन generously, जियोगे, you'll live a क्योंकि holy अब life. एक नया स्वभाव आपके अंदर डाल दिया गया है। Because now a new nature has come inside of you. Amen. कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? How many people understand? So अब आपका पूरा कॉन्फिडेंस किस पे है? So now your entire confidence is on what? क्योंकि ध्यान सुनिए, अगर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में है, If your confidence is on yourself, तो आप पता कैसे मसीह जीवन you जियोगे? know what kind of a Christian life you live? It's a little funny illustration, but that is exactly how it happens. थोड़ा मजाकिया है दिखने में, लेकिन exactly ऐसा ही होता है। कितने लोगों ने देखा हाईवे में वो गुब्बारे होते हैं ऐसे जो ऐसे होते हैं, On highway, have you seen those balloons? तो ऐसे those करते हैं। air balloons? देखा आपने? Have you seen those on the highway? सो अगर आपका भरोसा अपने कर्मों में, जिस दिन आपने करा 20 दिन हो गए कोई पाप नहीं करा,
6, 7, 8 घंटे प्रातः आप ऐसे चलोगे प्रभु के सामने। If your confidence is on your flesh, on your works, and it's been 20 days without sinning, you will walk like this. और जहां पाप हो गया And the day you made a mistake, ऐसे you sin, फुस, then all that confidence will go down. वो सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा इधर उधर। All the confidence will leave सो you. आपकी पूरी मसीह जीवन कैसा होगा? So your वाह। entire Christian life will be like this. मगर जिस दिन आपका भरोसा उस धार्मिकता में है, उस लहू में है जो यीशु ने बहाया, यू विल बी बोल्ड एज अ लायन, बिकॉज द बाइबल सेज राइचियस आर बोल्ड एज लायंस। But the day your confidence is on the righteousness that has come to you from God through Christ, you will be bold. आप साहसी होंगे। बाइबल कहती है धर्मी जन शेर के समान साहसी होंगे। आमेन। से आई एम राइचियस। बोलो मैं धर्मी हूं। कोई आपसे पूछे क्यों भाई तुमने क्या किया है जो तुम धर्मी हो? Somebody asks you why are you righteous? What have you done? बोलो मैंने कुछ नहीं किया। Say, I have done nothing. उसने करा, मैंने उस पर भरोसा करा है। I just believed what he did. या तो अपनी धार्मिकता स्थापित कर लो, Either establish your own righteousness, या फिर जो परमेश्वर की मुफ्त में धार्मिकता एक तोहफा है उसको ग्रहण कर लो। or you can receive the free gift that God has given to you for righteousness. क्या होगा जब आप परमेश्वर की आप एक पवित्र जीवन जियोगे, मगर पता क्या होगा? जब आपको पता है कि वो परमेश्वर से सेहत मेत में मुफ्त मिला है, आप दूसरों को नीचा नहीं करोगे। You know what will happen? You will live a holy life because you have received that righteousness, but at the same time you will not crush others who are not living exactly as per the standards. अब अगर आपके पास एक मर्सिडीज है, पूरी दिल्ली में केवल आपके पास, Now, आप बोलोगे, if only you have Mercedes in Delhi, तो चाबी बाहर निकालोगे आप। they'll hang the key out. मगर दिल्ली में If in Delhi, सरकार ने कहा सबको मर्सिडीज दे रहे हैं। government said give Mercedes to Now everyone. there you cannot boast. अब कोई घमंड करना रहा ही नहीं। You cannot boast because everybody has been given what you have. अब घमंड नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास वही है जो आपके ये पास है। धार्मिकता सेत मेत में परमेश्वर ने सब विश्वास करने वालों के ऊपर उंडेल दिया है। God has given this righteousness to all those who have believed. सो अगर अब मैं घमंड करूंगा तो मैं घमंड करूंगा उस मसीह में जो मेरे लिए क्रूस में गया और उसके लहू में जो मेरे लिए बहाया गया। So now if I will boast on the Christ who shed his blood for me. Amen. We're going to boast. हाँ, We're going to boast. हम घमंड करेंगे, But not on ourselves, अपने आप पर नहीं, but on our Lord. अपने प्रभु पर। महान है वो परमेश्वर जो पापियों को सेत मेत में धर्मी ठहराता है। Great is that God who justifies sinners and makes them righteous. अगर कोई आपके पास आएगा कहेगा मैं ना सिगरेट पीता हूँ, आपने कहा अरे पापी निर्लज्ज। If someone comes to you, I smoke cigarettes, you will not say, oh sinner. आप कहोगे मसीह की तरफ देखता जा। You will say, look towards the Lord. आपको पता है जब आपके ऊपर दया दिखाई गई, When you have been given mercy, आप भी दया दिखाओगे। you will also give mercy.